أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين يجتنبون
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگو، جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ شورى کی چند آیات آپ کے سامنے قاری صاحب نے انتہائی بہترین انداز میں پیش کی. قاری سہیل نظام صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. ناظرین گرامی، ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین کو آپ کی ایک کنیز ایک مرتبہ وضو کروا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور امام حسین پر پورا پانی گر گیا، تمام کپڑے بھیگ گئے. آپ دیکھیے کہ غصہ آنا یہاں پہ فطری بات ہے. کنیز کو کچھ خطرہ ہوا تو اس نے فوراً ایک آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے یہ جو بزرگ ہیں امام حسین جنہوں نے ہماری تعلیم دی ہے، ان کو بالکل غصہ نہ آیا. ظاہر ہے تعلیم ایسی تھی کہ غصہ بالکل نہ آیا، خاموش ہو گئے بالکل. اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ پڑھا ناظرین گرامی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا. کنیز نے اس کے بعد تیسرا جملہ بھی پڑھا ناظرین، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے. ناظرین گرامی، امام حسین نے سن کر یہ فرمایا کہ جاؤ، آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا. ناظرین گرامی، لوگوں کی خطاؤں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور اس کا ثواب آخرت نہایت اعلیٰ ہے. رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی بندے نے اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس گھونٹ سے زیادہ فضیلت والا نہیں پیا جو غصے والا گھونٹ ہوتا ہے ناظرین گرامی، جسے وہ اللہ کی رضا کے لیے ضبط کرتا ہے. ناظرین، زندگی میں مشکلات آنا کوئی نئی بات نہیں ہے. کبھی گھر کے مسائل، کبھی کام کا دباؤ، کبھی مالی پریشانی، کبھی لوگوں کا رویہ، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. انسان بظاہر ٹھیک لگتا ہے لیکن شاید اندر سے وہ تناؤ، غصے اور بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے. اور ناظرین، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتے انسان سے. آواز اونچی ہو جاتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ غصہ آتا ہے یا سٹریس محسوس کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سچویشن کو سمجھتے نہیں ہیں، سنبھالتے نہیں، ان چیزوں کو وقت پر پہچانتے نہیں ہیں.
हम अक्सर गुस्से को ही अपनी ताकत समझ लेते हैं, हालांकि बेकाबू गुस्सा अक्सर मेरी आपकी हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है नाज़रीन। इसी तरह जो हमें स्ट्रेस होता है या परेशानी या जो दबाव होता है उसको एक आम बात समझ के नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन यही मुसलसल तनाव आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत, हमारी नींद, हमारे ताल्लुकात और फ़ैसला करने की ताकत और सलाहियत को भी मुतासर कर देता है नाज़रीन। आज इसी मौजू पर बात भी करेंगे कि इन मुश्किलात का जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, इनका सामना कैसे किया जाए। जब आपके जहन पर दबाव होता है, दिल भरा हुआ होता है और हालात हमारे मुताबिक ना चल रहे हो तो ख़ुद को कैसे संभालना चाहिए। गुस्सा है तो क्या करना चाहिए, फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय बेहतर रद्द-ए-अमल कैसे दिया जाए, और सबसे बढ़कर नाज़रीन अपने अंदर वो बर्दाश्त, वो समझदारी कैसे पैदा करें जो एक मजबूत इंसान की पहचान होती है। हम ये भी समझेंगे कि गुस्सा हमेशा तो नुकसानदेह नहीं होता अगर उसे सही तरीके, सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल ये इंसानी जज्बा है, यही गुस्सा हमें अपनी हदें मुकर्रर करना भी सिखाता है, अपनी इज्जत बचाना डिग्निटी के साथ वो भी सिखाता है, और बेहतर और वक्त पे फैसला लेने की हिम्मत भी देता है। लेकिन शर्त एक है, गुस्सा हमारे काबू में हो, हम यानी मैं और आप गुस्से के काबू में ना हो। अगर कभी आप ज़हनी दबाव महसूस करें, चिड़चिड़ापन महसूस करें या गुस्से की कैफियत से गुजरते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलात आपको तोड़ने की बजाय मजबूत बनाएं, तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बेहतर और कोई सीरत मेरे और आपके लिए नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा तक फेंका, क्या क्या जुल्म सितम नहीं किए, क्या क्या नहीं कहा, किस तरह से आपको दीन इस्लाम से हटाने की कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा उनकी हिदायत की दुआ करते, हमेशा उनको दुआएं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने आप देख लीजिए, उनके किरदार को पढ़िए, उस वक्त को पढ़िए जब दीन इस्लाम लेकर के आए और दीन इस्लाम फैलाया, तो आप लोगों के रवैये देखिए, उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने दोस्त अहबाब, बहुत से ऐसे लोग आसपास के रहने वाले, उनका रवैया कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब्दील हो गया। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा उन लोगों को दुआ ही दी। नाज़रीन गिरामी, आज अगर हम गुस्से को काबू कर लें, इस नफ्स को काबू कर लें, ये नफ्स हम पे हावी ना हो, ये गुस्सा हमें काबू ना करे, बल्कि हम इस पे हावी हों, तो आप यकीन कीजिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, किस मौके पर हमें किस तरह ख़ुद को लेके चलना है, ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम और ये हमारा दीन जो है, ये हमें अक़ल पर चलना, अक़ल करना, गौर करना, फ़िक्र करना, यही तो सिखाता है कि किस मौके पे क्या करना है, अपने नफ्स को कैसे काबू में रखना है, कहाँ क्या बात करनी है। ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका हमें सिखाता है। और आप देखिए नाज़रीन गिरामी, आज की साइकोलॉजी जो बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा रही है, अगर हम दीन इस्लाम का मुताला करें तो हमें दीन इस्लाम में वो पूरी साइकोलॉजी समझ आ जाएगी, जिस तरह से हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। और नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपसे एक बात भी शेयर की थी मैंने कि क्या कहा जाए, क्या ये अहम तो है, लेकिन क्या नहीं कहना ये ज़्यादा अहम है कि किस मौके पे बहुत सी बातें आपको नहीं करनी होती। और गुस्से में इसी बात का तो ख्याल रखा नहीं जाता कि हम जज्बात की राह में बह जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, और दुआ गो हैं रमज़ानुल मुबारक हमारा बेहतरीन अंदाज में गुज़रे। 10 रोज़े पाकिस्तान में गुज़र चुके, अशराए रहमत जो है वो गुज़र रहा है, अशराए मग़फ़िरत शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, रब ताला को राज़ी कीजिए, उसको मनाइए, कुछ सीखिए। आइए मिल के मैं आप हम सब कुछ सीखते हैं रब को कैसे राज़ी करना है। लेकिन हमेशा हमेशा नाज़रीन गिरामी, अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इदारों के लिए हमेशा दुआ करते रहिए। आप यकीन कीजिए नाज़रीन गिरामी, यकीन कीजिए, कदर सीखिए अपने इदारों की, अपने लोगों की। यूनिटी के साथ रहना हमारे लिए बहुत लाजिम है। जनाब आगे बढ़ेंगे और मैं दावत देना चाहूँगा, हमारी को होस्ट हैं जोगन काजिम। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए जोगन काजिम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। जोगन कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। और एहसन, गुस्से की बात हो रही है, और जब हम व्यूअर्स गुस्से की बात करते हैं तो जब हम अपनी दुनिया में ये जो अफरा तफरी का एक माहौल चल रहा है हर तरफ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फिर उसके अलावा जो दुनिया में मामलात चल रहे हैं, अगर आप उसकी बेस देखें या फाउंडेशन देखें तो है तो गुस्सा, नाराज़गी, गिला, मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देने के बजाय सिर्फ एक बात की निशानदेही करना चाहूँगी जो एहसन ने बड़ी खूबसूरती से कुछ लम्हे पहले की। गुस्सा आना, गुस्सा ज़िंदगी का हिस्सा होना दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज़ है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सकता है कि उसको गुस्सा नहीं चढ़ता या उसको कभी गुस्सा नहीं चढ़ा। लेकिन गुस्से में, जैसे कि एहसन ने कहा, आप कहते क्या हैं, आप करते क्या हैं, आपका रद्द अमल क्या है। देखिए व्यूअर्स, एग्जाम्पल है छोटा सा। रोड पे एक्सीडेंट होता है दो गाड़ियों का। जिस गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को मारा या जिसकी मिस्टेक थी, वो बड़े नॉर्मल तमीज़ के अंदाज में गाड़ी से उतरते हैं और दूसरे बंदे को अप्रोच करते हैं ये कहने के लिए कि जी आपका नुकसान हो गया मेरे से, मुझे बताइए मैं क्या करूं। अब दूसरा बंदा अगर तमीज़ से, आराम से बात करता है तो वो मसला बड़े आसान अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में हल हो सकता है। लेकिन अगर जिसकी गाड़ी लगी है, नो डाउट उसके साथ ज्यादती हुई है, नो डाउट गलत चीज़ हुई है उसके साथ, लेकिन वो गाड़ी से उतरते ही गालियाँ निकालता है, हाथ उठाता है, बदतमीजी करता है, बात हाथापाई पे आ जाती है, तो चाहे वो सही था, चाहे वो अपनी जगह सही था, लेकिन उसके बाद जो उसका रद्द अमल था और जो उसका बिहेवियर था वो इतना नेगेटिव था कि इवन राह चलते घूम के कहेंगे इसको क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया, इवन दो उसकी गाड़ी का नुकसान हो। सो बात ये है कि व्यूअर्स, हमारे पास एक चॉइस है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो एक चीज दी है वो है फ्री विल, जो बाकी मखलूक से हटके है, जहां हम चूज कर सकते हैं कि हमने किस राह निकलना है। तो क्या आपने अच्छाई का, पॉजिटिविटी का, ऐसे ने बहुत अच्छी बात की कि गुस्से का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। उस गुस्से को अपनी एनर्जी बनाए, अपना फ्यूल बनाए गलत को सही करने के लिए, ना कि लोगों के गले काटें, गिरेबान पकड़ें, चीखे मारे, बदतमीजियां करें, लोगों को नुकसान पहुंचाए। व्यूअर्स, जिंदगी मौत रब के हाथ में है। हमारा रब ही सबसे बड़ा जज है। हम इंसान हैं, हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। जब फैसला करने वाला बैठा है, जब कानूनी इदारे हैं, जब पुलिस है, जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो हमें उनको उनका काम करने देना चाहिए। एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें उन उसूलों को फॉलो करना चाहिए जो उस वक्त उस सिचुएशन में सामने आ रहे हैं और जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। बात यह है कि व्यूअर्स, अब कोई भी सिर्फ पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमने पूरी दुनिया को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की तरफ कोशिश करनी है, और उसके लिए सबसे अहम चीज इस वक्त अपने गुस्से पे काबू लेके आना है और सही तरीके से आगे बढ़ना है। मसला बदतमीजी, बदमज़गी से भी हल हो सकता है, और मसला जो भी हो वो प्यार, मोहब्बत और अच्छे अखलाक से भी हल हो सकता है। जोगन, आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंपनी में जो साथ रहे, उनके अहले बैत का जिक्र करते हैं, सहाबा का जिक्र करते हैं, तो आप उनकी दूर अंदेशी, उनकी अक्लमंदी, उनकी जहानत, उनका ज़िंदगी का तौर तरीका जब आप देखते हैं, आप मामला फहमी जिसको कहा जाता है, जब आप वो देखते हैं तो फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं कि जज्बात में आके चीज़ें ना करें, जज्बात में आके फैसले ना करें, सोचें समझें, और फिर जब वक्त मुनासिब हो। और हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल, मैं आज की दुनिया में चाइना की मिसाल हमेशा मैं लोगों को देता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो खामोशी से तरक्की करता रहा, डिसिप्लिन भी रहा, तरक्की भी कर रहा है, और आज देखिए ना कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने उनके साथ कुछ बुरा किया भी तो उन्होंने कहा वक्त आने दो, फिर हम देखेंगे, और वो चलते गए अपनी डगर पर। आज देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट पावर है। तो हमें पूरी कौम को ये सोचना चाहिए कि किस तरह हमें यकजा होकर अपने ही लोगों को या आपस में ही हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सोचना। और ऐसा जो एक बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात तैयबा से, उनकी लाइफ से
ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے احسن دیکھیں جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے تو ان سے بدلہ لینے کا آپ کے پاس پورا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ایڈ کی جاتی ہے، لیکن معاف کرنے والا اس سے زیادہ افضل ہے. سو کیا ہم نے ان میں سے بننا ہے جو رب کے سب سے قریب ہے اور جو اپنے رب پہ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں کہ میرا رب بہتر فیصلہ کرے گا، میں اپنے رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. بالکل صحیح. Isn't that better؟ بالکل صحیح. قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہرگز زیادتیاں خود اور کرنا. یہ تو آپ اگر قانون ہاتھ میں لیتے تو یہ تو اپنے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جناب آج اسی پر ہم بات چیت کرتے رہیں گے، آگے بڑھیں گے کلام کی جانب. ہمارے ساتھ ہماری ٹیم جو یہاں پہ روز کلام پیش کرتی ہے وہ موجود ہے. آئیے جی آپ تشریف لائیے اور کلام پیش کیجیے. جی بسم اللہ. آج کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ ہبا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ تیری حمد ہے تیری ثنا. بسم اللہ بسم اللہ. تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب. ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب. سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے. کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان.